بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ تصور کیجئے ایک ایسی جگہ جہاں نہ موت ہے نہ بیماری، نہ دکھ ہے نہ غم، نہ بھوک ہے نہ پیاس، جہاں صرف سکون، راحت اور دائمی خوشیاں ہیں۔ ذرا سوچئے ایک دن آنکھ کھلے اور سامنے ایک دنیا ہو جو خوابوں سے بھی زیادہ حسین ہو، جہاں نہ شور نہ تھکن، نہ بیماری نہ بڑھاپا، نہ دنیا کی طرح کمانے اور پکانے کی فکر، جہاں نہ دن ہے نہ رات، جہاں ہر طرف خوبصورت مناظر، اللہ کی بے شمار نعمتیں اور اللہ کا قرب۔ یہ کوئی خیالی دنیا نہیں بلکہ یہ جنت کی زندگی ہے جس کا وعدہ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں سے کیا ہے۔ وہ ایسی زندگی جہاں انسان اللہ کی لامحدود نعمتوں کو دیکھ کر کہے گا، کاش میں دنیا میں اور صبر کرتا اور نیکیاں بڑھا لیتا۔ جنت اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمت، وہ انعام جس کے لیے انسان نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صبر کیا اور گناہوں سے اپنا دامن بچا کے رکھا، دنیا کی لذتوں کو چھوڑا صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے۔ لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ سوال اکثر پیدا ہوتا ہے کہ جنت جو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے، وہاں پہنچ کر جنت میں داخل ہونے کے بعد آخر ہماری زندگی کس طرح کی ہوگی؟ کیا ہم وہاں بھی کھائیں پیئیں گے؟ کیا ہم جنت میں سوئیں گے؟ وہاں کیا پہنیں گے؟ وہاں کے محلات کیسے ہوں گے؟ وہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے مخاطب ہوں گے؟ کیا ہمیں جنت میں دنیاوی زندگی یاد ہوگی؟ اور کیا جس طرح سے ہم دنیا میں ایک خاندان کی طرح رہتے ہیں، جنت میں بھی ایسا کوئی معاملہ ہوگا یا نہیں؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو اکثر جنت کی زندگی سے متعلق ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں قدم بقدم چلتے ہیں جنت کے دل فریب مناظر کی طرف، اس دنیا سے بہت دور، ایک ایسی دنیا جہاں ہر لمحہ خوشبو میں بسا ہوا ہو، ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں ہو اور ہر سانس اللہ کے شکر سے لبریز ہو۔ ناظرین محترم، جب مومن مرد اور عورتیں جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ پاک ان کے دلوں سے دنیا کا ہر غم، ہر حسرت، ہر درد، ہر قسم کی بیماری، حسد، غصہ، کینہ، نفرت، قدورت اور ہر قسم کی بد کلامی، ان سب چیزوں کو دلوں سے نکال دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں نہ کوئی حسد ہوگا نہ دشمنی، سب کے دل ایک جیسے ہوں گے۔ جنتی جوان خوبصورت، نرم گفتار، چہرے چمکدار جیسے 14ویں کا چاند ہو۔ جب جنتی حساب و کتاب کے بعد جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ قرآن مجید کی سورۃ الزمر میں اللہ پاک یوں ارشاد فرماتے ہیں، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلامتی ہو تم پر، تم پاک ہو، داخل ہو جاؤ ہمیشہ کی جنت میں۔ جنت کا پہلا لمحہ ہی ایسا ہوگا جو دنیا کے ہر لمحے پر بھاری ہوگا۔ جیسے ہی جنتی جنت کے دروازے پر پہنچیں گے اور اندر قدم رکھیں گے تو ایسی خوشبو محسوس کریں گے جو کبھی دنیا میں محسوس نہ کی گئی ہوگی۔ قرآن مجید میں یوں ارشاد ہوتا ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تم وہاں دیکھو گے تو نعمتوں اور عظیم بادشاہی کو دیکھو گے۔ ناظرین محترم، جنت میں پہنچ کر جنتیوں کے جسم کا نظام بدل جائے گا۔ اب نہ تو پخانہ آئے گا اور نہ ہی پیشاب، نہ تھوک ہوگا نہ بلغم، نہ ناک بہے گی، نہ کان کا میل، نہ بدن کا میل، نہ منہ کی بدبو اور نہ جسم پر بال ہوں گے۔ اہل جنت کے اوصاف ایسے ہوں گے کہ اہل جنت کے چہرے روشن ہوں گے، آنکھیں قدرتی طور پر سرمگی یعنی سرما لگا ہوا ہوگا، سر پر، پلکوں پر اور بھووں کے علاوہ جسم پر کہیں بال نہیں ہوں گے۔ جنتی مردوں کے سر کے بال نیم گھنگرالے ہوں گے جو گردن تک ہوں گے، اور عمریں 33 برس کی ہوں گی، اور قد حضرت آدم علیہ السلام کے موافق تقریباً 60 فٹ ہوں گے۔ اہل جنت ہر قسم کی غلاظت اور گندگی سے پاک ہوں گے۔ پسینہ آئے گا مگر اس میں بھی مشک کی خوشبو آئے گی۔ اہل جنت ہمیشہ خوش رہیں گے، مسکرائیں گے، کوئی غم، کوئی دکھ اور کوئی رنج پریشانی، کوئی بیماری نہیں ہوگی، ہمیشہ صحت مند رہیں گے، کبھی بھی بڑھاپا نہیں آئے گا اور کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔
जन्नती औरतों के औसाफ कुरान मजीद में यूं बयान हुए, वह इंतहाई बाहया शर्मीली होंगी, निगाहें नीची रखने वाली होंगी, हुस्नो जमाल में लूलू और मरजान जैसे मोतियों से बढ़कर हसीनो जमील होंगी। बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत की कोई औरत अगर लम्हा भर के लिए दुनिया में झांक ले तो उसका चेहरा मशरिक से मगरिब तक की तमाम चीजों को रोशन कर दे और हर चीज को मुअत्तर कर दे। नाजरीन मोहतरम, जन्नत में कोई शख्स भी कंवारा नहीं होगा। हर शख्स की कम से कम 2 दुनियावी बीवियां होंगी और ये बीवियां औलादे आदम से होंगी। दुनिया की इन औरतों को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल होने से कबल दोबारा पैदा फरमाएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको ऐसा हुस्नो जमाल से नवाजेगा जैसे जन्नत में पैदा होने वाली औरतें यानी हूरों का हो, बल्कि हुस्नो जमाल में जन्नती औरतों से भी बढ़कर होंगी। इन औरतों को नई पैदाइश के बाद किसी इंसान या जिन ने छुआ तक नहीं होगा। ये औरतें अपने शोहरों की हम उम्र होंगी, बाहया, शर्मीली, बापर्दा और नरमो नाजुक होंगी और कूटकर अपने शोहरों से मोहब्बत करने वालियां होंगी। जन्नती अपने अपने महल्लात में अपनी बीवियों के हमरा घने और ठंडे सायों में, बहती नहरों के किनारे, सोने चांदी और मोतियों से आरास्ता मसनदों पर बैठे खुश गपियां करेंगे, खूब खाएं पिएंगे, मगर उनके खाने पीने के इंतजामात के लिए इनकी बीवियों को कोई जहमत नहीं उठाना पड़ेगी। जिस तरह दुनिया में एक औरत अपने शोहर की खिदमत के लिए जहमत उठाती है, जन्नत में ऐसा कोई भी मामला नहीं होगा। जन्नत में हर किसी के लिए आराम ही आराम है, जो चाहेंगे वो फौरन हाजिर कर दिया जाएगा। मोतियों की तरह खूबसूरत और चाको चौबन खुदाम होंगे, जहाँ बस हुक्म होगा और चीज हाजिर कर दी जाएगी। नाजरीन मोहतरम, जन्नत में अल्लाह पाक तमाम करीबी रिश्तों को मसलन दादा दादी, नाना नानी, बेटा बेटी, वालिदैन, ये सब अगर दर्जात के एतबार से एक दूसरे से फासले पर होंगे तो फिर भी अल्लाह पाक अपने फजलो करम से कम दर्जे वालों को उनका दर्जा बढ़ाकर आपस में इनको इकट्ठा फरमा देगा। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत है। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। जन्नत में दाखिल होने के बाद अहले जन्नत की ज़ियाफत सबसे पहले मछली की कलेजी से की जाएगी, दूसरी मेज़बानी बैल के गोश्त से की जाएगी। मशरूबात में सलसबील चश्मे का पानी पेश किया जाएगा। हर तरह के लजीज फल जिनमें अंगूर, अनार, खजूरें, केला, इन तमाम फलों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में भी जिक्र फरमाया, ये अता किए जाएंगे। और हर तरह के मशरूबात जिनमें दूध, शहद, शराबे तहूर, आबे कोसर, जंजबील, काफूर के चश्मे का पानी होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, फी जन्नतिन व अयूनिन युस्कौना मिन रहीकिन मख्तूम। उन्हें जन्नतों और चश्मों में रखा जाएगा, खालिश शराब पिलाई जाएगी। जन्नत में अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें ही नेमतें होंगी। जन्नतियों को ये तमाम नेमतें सोने चांदी के बर्तनों में पेश की जाएंगी। वहाँ की तमाम नेमतें हमेशा तरोताज़ा रहेंगी, कभी खराब नहीं होंगी। जन्नती जन्नत में खूब खाएं पिएंगे, मगर तबीयत में कोई भारीपन या बोझलपन नहीं होगा। जन्नत में जब भी कोई फल खाना चाहेंगे तो वह उनके दस्तरखान पर हाजिर होगा। किसी परिंदे को देखकर उसका गोश्त खाने को जी चाहेगा तो परिंदे खुद ब खुद खिदमत के लिए पेश हो जाएंगे। जन्नत की ये तमाम नेमतें हमेशा के लिए होंगी, कभी भी खत्म नहीं होंगी और ना ही इनका ताल्लुक किसी मौसम से होगा। जिस तरह दुनिया में कुछ फल मौसम के हिसाब से दस्तयाब होते हैं और फिर मौसम ख़त्म होने के बाद वो फल भी ख़त्म हो जाते हैं, मगर जन्नत में ऐसा कोई भी मामला नहीं होगा और फिर इन नेमतों को बगैर किसी इजाज़त के और बगैर किसी रोक टोक के हासिल कर सकेंगे। नाज़रीन मोहतरम, जन्नत में हर मियाँ बीवी के लिए अल्लाह ताला हर एक जोड़े को एक वसी और रीज़ ममलुकत अदा फरमाएगा, जिसके महल्लात सोने चांदी की ईंटों और मुश्क के गारे से बने होंगे। महल के संगरेजे मोती और याकूत के होंगे, उसकी मट्टी ज़ाफ़रान की होगी। हर जन्नती को अपने अपने दर्जे के एतबार से 2-2 वसी और रीज़ बागात अता किए जाएंगे। अस्हाबुल यमीन यानी दाएं हाथ वाले यानी मुकर्रबीन को अल्लाह ताला 2-2 सोने के बागात अता फरमाएंगे, जिनकी हर चीज़ सोने की होगी। दरख्तों के तने, पत्ते, डालियाँ, हर चीज़ सोने की होगी। हत्ता के मसनदें, बर्तन और यहाँ तक कि उनकी कंघियाँ भी सोने की होंगी।
असहाबुल यमीन के अलावा तमाम नेक लोगों को भी दो दो बागात अता किए जाएंगे। इनके बागात चांदी के होंगे, यहाँ हर चीज चांदी की होगी। सूरतुल ज़मर में अल्लाह पाक यूं इरशाद फरमाते हैं, लेकिन इल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम गुरफा मन फौक़हा गुरफा। अल्लाह से डरने वालों के लिए ऊंचे ऊंचे महल होंगे, जिनके ऊपर भी महल होंगे। हर महल वसीओ अरीज होगा। यहाँ नस्ब एक एक खैमा फूलदार मोती का होगा, जिसकी बुलंदी 60 मील होगी। जन्नत की महरें हर जन्नती के महल तक जाती होंगी। इनके महल्लात में सोने की अंगीठियां जलती होंगी, जिनसे ऊद की खुशबू निकलेगी। जन्नत में पहनने के लिए खूबसूरत खालिस रेशम के लिबास होंगे। दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को रेशम और सोना पहनना मना फरमाया है और शराब को हराम करार दिया है, मगर जन्नत में अल्लाह पाक रेशम का लिबास पहनाएगा और रेशम के अलावा और भी ज़र्क बर्क लिबास होंगे, जिनमें इस्तबरक, सुंदस और अतलस शामिल है। इनका भी खास तौर से जिक्र किया गया है। ये जन्नतियों को अता किए जाएंगे। कुरान मजीद की सूरत अद-दहर में अल्लाह पाक यूं इरशाद फरमाते हैं, युलब्बसूना फीहा मिन सुंदूसिन व इस्तबरक़िन। वो बारीक और मोटे रेशम के लिबास पहनेंगे। जन्नत में जन्नतियों के इखलाक इंतहाई आला होंगे। सब एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से पेश आएंगे। जन्नत में नींद न होगी, क्योंकि नींद भी मौत की एक किस्म है और जन्नत में मौत नहीं। नाज़रीन मोहतरम, जन्नत में तमाम जन्नतियों को अपनी दुनियावी जिंदगी याद होगी और वो अपनी दुनियावी जिंदगी के बारे में बाहम गुफ्तगू करेंगे। जन्नती आपस में मिलेंगे, बातें करेंगे, हंसेंगे और माजी को याद करेंगे। सूरह तूर में अल्लाह पाक यूं इरशाद फरमाते हैं, कालू इन्ना कुन्ना कब्लु फी अहलिमा मुशफिकीन। वो कहेंगे कि हम दुनिया में अपने घर वालों के साथ डरते थे। जन्नत में तमाम अंबिया और ख़ास कर हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होगी, जिसकी हर इंसान को ख्वाहिश होती है कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो। तो जन्नत में अल्लाह पाक हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का मौका अता फरमाएगा। ज़रा सोचिए कि उस वक्त दिल की क्या कैफियत होगी कि जब हम अपनी आँखों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेंगे और मुलाकात का शर्फ पाएंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सब को ऐसे लोगों में शामिल फरमाए और फिर जन्नत में अल्लाह की नेमतों की कोई हद ना होगी। सब नेमतों से बढ़कर अल्लाह का दीदार होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब जन्नती अल्लाह को देखेंगे तो सारी नेमतें छोटी लगने लगेंगी। एक लम्हा, एक नज़र और रूह सरशार, यही है जन्नत का सबसे बड़ा इनाम। नाज़रीन मुहतरम, ये दुनिया की ज़िंदगी तो महज धोखा है, ये मुख्तसर है, मगर जन्नत की ज़िंदगी हमेशा की है। हम यहाँ वक्ती फ़ायदे की खातिर अपनी असल ज़िंदगी से गाफिल हो चुके हैं। वक्ती खुशियों, दुखों और मसाइल में ऐसे उलझ चुके हैं कि असल ज़िंदगी को भूल चुके हैं। हमने हलाल और हराम में तमीज़ ख़त्म कर दी है। हमें सिर्फ दौलत कमाने की धुन सवार है। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि माल हराम का हो या हलाल का। अफसोस की बात तो ये है कि हमारी माओं, बहनों और बीवियों ने अपने मर्दों से ये सवाल करना छोड़ दिया है कि ये पैसे कहाँ से आए, क्योंकि हमें तो सिर्फ पैसों से गर्ज है। और फिर हम अल्लाह से ये भी शिकवा करते हैं कि अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल नहीं करता, जबकि हमारा जिस्म तो हराम के माल पर पल रहा होता है। अफसोस कि हमारे अंदर मुसीबत पर सब्र और नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत खत्म होती जा रही है और ये चीजें हम अपने बच्चों की तरबियत से भी खत्म करते जा रहे हैं। आज सच बोलना, सादगी इख्तियार करना एक ऐब तस्वुर किया जाने लगा है। हमारे माशरे में शराब, जिना, लड़ाई झगड़े, कत्लो गारत, यतीमों का माल हड़प करना, हत्ता के वालिदैन की खिदमत के बजाय उनके साथ बदसलूकी और आपस के ताल्लुकात में कीना रखना, यहाँ तक कि जिस शख्स से हमें कोई फायदा मिलने की उम्मीद ना हो, जिससे हमारी कोई गरज बाकी ना हो, ऐसे शख्स को हम सलाम करना भी पसंद नहीं करते। हमारी नौजवान नस्ल जिसमें लड़के और लड़कियाँ, उनके हुलिये देखकर यकीन नहीं होता कि हम किसी इस्लामी माशरे में रहते हैं। मर्दों की शलवारें टखनों से नीचे और लड़कियों की पिंडली तक और जिस्म को नुमाया करने वाले लिबास पहने जा रहे हैं और शराब जिसने हमारे माशरे को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इसके साथ साथ सूद जैसी लानत जिसे इस्लाम ने हराम करार दिया है,
اس کو ہم بڑے شوق کے ساتھ پرافٹ کا نام دے کر خوشی خوشی قبول کرتے ہیں۔ ہماری نمازوں میں خشوع و وضو باقی نہیں رہا، ہم مسجد میں سب سے لیٹ اور وہاں سے نکلنے میں جلدی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دوستی نہیں کرتے، حتیٰ کہ ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے، اور پھر ہم شکوہ بھی اسی پروردگار سے کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم میں سے ہر شخص جنت الفردوس میں تو جانا چاہتا ہے، مگر افسوس کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں۔ اگر ہم ہر روز سونے سے قبل اپنے دن بھر کے اعمال پر غور کریں، اپنا محاسبہ خود کریں، تو نتیجہ ہمارے سامنے ہوگا کہ ہم نے آج کتنے اچھے کام کیے اور کتنے برے کام کیے۔ ہمارا تلڑا نیکیوں کا بھاری ہوگا یا برائیوں کا، یہ فیصلہ ہماری آج کی زندگی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے اور ہمیں ان تمام برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جنت میں جانے والوں میں ہمارا شمار بھی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ اس طرح کی ایمان افروز ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔